Hello everyone. Today I am going to teach you The Tiger King, which is the second chapter in your book Vistas of class 12th. The Tiger King, as the name suggests, it might be the story of a king uh, who has a liking for tigers. It might be the story of a tiger who attained the stature of a king, or there are a number of theories which can be formulated based on just this title, the Tiger King. लेकिन है क्या एक्चुअली, क्यों ये नाम पड़ा टाइगर किंग? तो इसके लिए हमें वील हैव टू रीड द स्टोरी फर्दर. टॉकिंग अबाउट द ऑथर, the author's name is Ramaswamy Iyer Krishnamurthy. He was born on 9 September 1899 and died on 5th December 1954. His pen name is Kalki. So if you observe the author's name in your NCERT book, तो वहाँ पर you'll find Kalki only. And if this any question from this chapter comes in which you would like to mention the name of the author, तो वहाँ पर भी आपको Kalki ही mention करना है. He was a Tamil writer, journalist, poet, critic, and Indian independence activist. He penned about 120 short stories. Not only this, 10 novels भी लिखे हैं उन्होंने. 3 historical romances, editorial and political writings, and hundreds of films and music reviews have been written by him. Introduction to the lesson. This story is a satire on the rich and powerful kings of the olden times. पुराने समय में, ओल्डन टाइम्स में, जो इंडियन रिच और पावरफुल किंग्स हुआ करते थे, उनके ऊपर ये स्टोरी एक सटायर है, एक व्यंग्य है. उनका मजाक उड़ाया गया है, एक काइंड ऑफ रिडिक्यूल किया गया उनको इस स्टोरी के थ्रू, उनकी हैबिट्स को. In order to prove the prophecies of the fortune teller wrong, the king of Pratibandhapuram mindlessly kills 99 tigers, but the 100th one, the cause of the king's death, escapes his bullet. एक फॉर्च्यून टेलर होता है, एस्ट्रोलॉजर होता है, और वो कोई प्रोफेसी देता है टाइगर किंग की लाइफ के बारे में. बट टू प्रूव हिम रॉन्ग, कि उसकी प्रोफेसी गलत है, उसकी जो फ्यूचर प्रडिक्शन है वो रॉन्ग है, उसको रॉन्ग प्रूव करने के लिए दिस सो कॉल्ड किंग ऑफ प्रतिबंधपुरम वो माइंडलेसली 99 टाइगर्स को हंट करके मार देता है. बट वट अबाउट द 100th टाइगर, जो अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजर उसकी डेथ का मेन कारण है? It escapes his bullet, and ultimately the king is killed by an inanimate tiger made of wood. Hence, the prophecy turns to be true despite the king's efforts to prove it wrong. This is the roadmap of the chapter The Tiger King. In this chapter, there is a talk about an Indian prince. The story is set up in British India when the Britishers were ruling India. And Jung Bahadur is the name of that Indian prince. Prophecy about the Tiger King, उसके बारे में prophecy क्या दी गई थी? That he would be killed by a tiger. ये prophecy दी थी एक royal astrologer ने, and the result was king started killing the tigers. Now irony in it in this statement that in this chapter is that he was killed by a wooden tiger. कोई रियल टाइगर उसकी डेथ का कारण नहीं बनता. ही वॉज किल्ड बाय अ वुडन टाइगर. ड्रामेटिक आयरनी, रीडर्स को मालूम है द टाइगर किल्ड बाय हंटर्स, कि टाइगर्स को हंटर मार सकते हैं, और जो किंग है उसने अपनी किंगडम के सभी कामों को छोड़कर एक हंटर का ही काम शुरू कर दिया है. प्रतिबंधपुरम जिस स्टेट का किंग है वो, इट्स एन इंडियन स्टेट and burdened by tiger king's whimsical behavior. ये स्टेट burdened है क्योंकि टाइगर किंग अपने whimsical behavior, अपने रॉन्ग डूइंग्स को सही प्रूव करना चाहता है थ्रू दैट प्रडिक्शन ऑफ एन एस्ट्रोलॉजर. अपनी मर्ज़ी के मुताबिक वो अपनी स्टेट के लोगों को ज़बरदस्ती चलाता है. और द किंग इज़ सपोज टू सर्व पीपल, उसका काम होता है अपनी प्रजा का ध्यान रखना, बट वो उन सब कामों को छोड़कर जस्ट टाइगर हंटिंग के पीछे ही लग जाता है. सटायर, इट्स अ सटायर ऑन ऑल द इंडियन प्रिंस. इंडिया में जितने भी रॉयल प्रिंस हैं, द पीपल इन पावर इन टुडेज टाइम, आजकल के टाइम में भी जो भी लोग पावर में हैं, रिच हैं, पावरफुल हैं. दीवान है एक स्टोरी में, और एक ब्रिटिश ऑफिसर का भी मेंशन है. तो इन सभी के ऊपर स्टोरी एक सटायर है. There are some minor characters in the story. One of them is Diwan.
There are some hunters, and this Jilani is a wrong typing here. It's not Jilani. It's talk about a British officer who's referred to as I have forgotten. I've just forgotten the name. Sorry. As for the chapter The Tiger King, it's written by Kalki. And what is the general attitude of human being towards wild animals? Before starting the chapter, the writer has put up a question with the readers कि वाइल्ड एनिमल्स के लिए हम सबका जनरल एटीट्यूड क्या होता है. डू वी लव देम, डू वी केयर फॉर देम, और डू वी गेट फियर ऑफ देम ऑन सीइंग देम. जब हमारे सामने अगर कोई टाइगर आके खड़ा हो गया तो द नेचुरल एंड द फर्स्ट फीलिंग दैट विल कम इन आवर माइंड इज obviously of fear. So this Maharaja of Pratibandhapuram is the hero of this story. He is the protagonist and he may be identified by different names. Although in names का इस chapter में कोई reference नहीं है, it's just to create humor in the story. उनके बहुत सारे नाम यहाँ पर mention किए गए हैं जिन नामों से उन्हें जाना जाता था. His Highness जमेदार जनरल, खिलेदार मेजर सताव्याग्रह समहरी, महाराजा धीराज विश्वभुवन सम्राट, सर जिलानी जंग बहादुर, MAD, ACTC और CRCK. But this name is often shortened to the Tiger King, by which we also know the protagonist of our story. तो बाकी सब name are there just to create humor. I have come forward to tell you why he came to be known as Tiger King. आए यहाँ पर author ही है, author is the narrator of the story. तो वो बिगिनिंग में ही हमें बताना चाहते हैं कि टाइगर किंग का नाम टाइगर किंग क्यों पड़ा. And I have no intentions of pretending to advance only to end in a strategic withdrawal. मेरी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं है कि मैं आपके आगे pretend करूं या दिखावा करूं कि मैं आपको बता रहा हूं और ऐसे करते करते ही स्टोरी एंड हो जाए. ऐसा मेरा कोई इंटेंशन नहीं है. ऐसा ऑथर ने बिगिनिंग में ही क्लियर कर दिया है. इवन द थ्रेट ऑफ अ स्तूका बॉम्बर विल नॉट थ्रो मी ऑफ ट्रैक. अगर कोई स्तूका बॉम्बर आ जाए जिनका यूज़ जापान में नागासाकी और हिरोशिमा पर भी बॉम्ब ड्रॉप करने के लिए किया गया था, तो अगर कोई स्तूका बॉम्बर आ जाए या कोई और उसे अफ्रेड करने के लिए ऑथर को आ जाए कि नहीं तुम ऐसा नहीं करोगे, तुम ये ट्रेडिशन को नहीं ब्रेक कर सकते हो कि स्टोरी की बिगिनिंग में ही तुमने कैसे क्लाइमैक्स को रिवील कर दिया, तो द ऑथर इज सेइंग कि मैं उससे भी डरने वाला नहीं हूँ, मुझे कोई नहीं डरा सकता, तो मैं बताकर ही रहूँगा. स्तूका इफ़ इट लाइक्स कैन बीट अ हिस्ट्री रिट्रीट फ्रॉम माई स्टोरी. रिट्रीट इज़ टू विदड्रॉ, पीछे हटना. स्तूका बॉम्बर अगर चाहे तो वो मेरी स्टोरी से पीछे हट सकता है. Right at the start, it is imperative to disclose a matter of vital importance about the Tiger King. Imperative is important. बिगिनिंग में ही एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक सिग्निफिकेंट मैटर है टाइगर किंग के बारे में जो ऑथर रिवील करना चाहता है. Everyone who reads of him will experience the natural desire to meet a man of his indomitable courage face to face. Indomitable is anything which cannot be deviated from its place. जिसको हम डरा नहीं सकते हैं, जिसको मूव नहीं कर सकते हैं. तो जो टाइगर किंग है उसकी करेज इनडोमिटेबल है, उसको कोई डरा नहीं सकता है. तो ऐसे किंग के बारे में पढ़ने के बाद में किसी भी इंसान के अंदर एक नेचुरल डिज़ायर होगी कि वो टाइगर किंग से मिलना चाहेगा फेस टू फेस. लेकिन ऑथर क्लियर कर रहा है दैट देयर इज़ नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट एज भरत सेड टू रामा अबाउट दशरथ. रामायणा में हम सब ने पढ़ा है कि भगवान राम को जब वन भेज दिया गया था तो बीच जब भरत जी को पता चलता है राम भगवान के बारे में तो वो उनके पीछे पीछे जाते हैं उन्हें वापस बुलाने के लिए. और जब वो राम जी से मिलते हैं तो भगवान राम का उनसे प्रश्न होता है कि दशरथ कैसे हैं, उनके पिता. तो जो जवाब भरत ने दिया था वही सेम जवाब ऑथर का भी है कि द टाइगर किंग हैज़ रीच्ड दैट फाइनल अबोर्ड ऑफ ऑल लिविंग क्रीचर्स. अबोर्ड इज़ द डेस्टिनेशन, फाइनल डेस्टिनेशन जहाँ पर हम सबको जाके बसना है, दैट इज़ आफ्टर आवर डेथ. तो टाइगर किंग भी अपनी फाइनल अबोर्ड पर, अंतिम यात्रा पर निकल चुका है. वो भी अपने अंतिम घर पहुँच गया है जहाँ मरने के बाद हर इंसान जाता है. एंड दैट वाज द सेम आंसर गिवन बाय भरत टू राम अबाउट दशरथ. द टाइगर किंग इज़ डेड. द मैनर ऑफ हिज डेथ इज़ अ मैटर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट. और जो ये स्टोरी है
इट टॉक्स अबाउट द मैनर ऑफ द किंग डाइंग, कि वो मरा कैसे, वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी इंटरेस्ट की बात है. इट कैन बी रिवील्ड ओनली एट द एंड ऑफ द टेल. द मोस्ट फैंटास्टिक एस्पेक्ट ऑफ हिज डिमाइज वॉज दैट एज सुन एज ही वॉज बोर्न, astrologers had foretold that one day the Tiger King would actually have to die. लेकिन जो उसका मैनर ऑफ डेथ था वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी इस वे में भी था क्योंकि एज सून, ऑब्वियसली क्लाइमैक्स को तो बिगिनिंग में नहीं बताया जा सकता है कि वो कैसे मरा, वो तो हमें एंड में ही रिवील किया जाएगा. लेकिन जो उसके डिमाइस इज़ एंड का जो एक फंटास्टिक एस्पेक्ट है वो ये है कि जैसे ही उसका जन्म हुआ, जब टाइगर किंग का बर्थ हुआ था, तो एस्ट्रोलॉजर्स को बुलाया गया एंड दे फोरटोल्ड, उन्होंने पहले ही प्रेडिक्शन दे दी द टाइगर किंग वुड एक्चुअली हैव टू डाई, कि एक दिन उसे मरना पड़ेगा. ऑब्वियसली देयर इज़ नथिंग अम्यूजिंग इन इट, क्योंकि जिसका भी जन्म हुआ है उसे मरना ही है एक ना एक दिन तो. And they said that the child will grow up to become the warrior of warriors, hero of heroes, champion of champions, but कहकर वो रुक गए. उन्होंने ये कहा कि वो सभी वॉरियर्स, योद्धाओं में से महान योद्धा होगा, हीरोज़ का हीरो होगा, चैम्पियंस का चैम्पियन होगा. मतलब उसके बराबर का ना तो कोई वॉरियर, ना कोई हीरो, ना कोई चैम्पियन होगा. बट कहकर कुछ हेजिटेट होने लगे. दे बिट देयर लिप्स एंड swallowed hard. When compelled to continue, the astrologers came out with it. लेकिन जब उन्हें फोर्स किया गया बोलने के लिए तो उन्होंने आगे कहा, दे सेड दिस इज़ अ सीक्रेट विच शुड नॉट बी रिवील्ड एट ऑल. ये एक ऐसा सीक्रेट है जिसे बताया नहीं जाना चाहिए. एंड येट वी आर फोर्स टू स्पीक आउट, फिर भी हमें बोलना पड़ रहा है. द चाइल्ड बॉर्न अंडर द स्टार विल वन डे हैव टू मीट इट्स डेथ. अभी भी उन्होंने कुछ न्यू बात नहीं बताई. उन्होंने यही कहा कि इस बच्चे का जन्म जिस स्टार के अंडर उसका जन्म हुआ है उसे एक दिन मरना होगा. तो इसमें कुछ अम्यूजिंग, कुछ नया नहीं है, कुछ इनक्रेडिबल नहीं है. ऑब्वियसली जिसका जन्म हुआ है उसे मरना ही है. एट दैट वेरी मोमेंट अ ग्रेट मिरेकल टुक प्लेस. लेकिन इसको सुनने के बाद में जो घटना हुई, दैट वाज अ मिरेकल, दैट वाज अनबिलीवेबल. एक astonishing phrase emerged from the lips of the 10-day-old जिलानी जंग बहादुर. Yes, the author is saying 10-day-old, 10 दिन का बच्चा जिसका नाम जिलानी जंग बहादुर है, जो बड़े होके टाइगर किंग बना, उसके मुंह से astonishing phrase, astonishing is surprising, कुछ बातें निकली. He said, "O wise prophets." Prophets are saints, ओ महान संतों, ये कहकर उसने उन्हें रेफ़र किया. Everyone stood transfixed in stupefaction. Transfixed is to stay fixed in a place and stupefaction is surprise. हर कोई अपनी जगह पर सरप्राइज में फिक्स होकर रह गया. They looked wildly at each other and blinked. एक दूसरे को देखकर वो ब्लिंक करने लगे. And he further said, "O wise prophets, it was I who spoke." मैं था जिसने बोला था. दिस टाइम देयर वर नो ग्राउंड्स ऑफ डाउट. इस बार डाउट के लिए तो कोई जगह ही नहीं रह गई थी. इट वॉज द इन्फेंट बॉर्न जस्ट 10 days ago who had enunciated the word so clearly. Enunciated is utter, speak. अब डाउट की कोई बात ही नहीं थी. सभी को क्लियर था कि ये इन्फेंट ही एक छोटा सा बच्चा है जिसका जन्म सिर्फ 10 दिन पहले हुआ है और वो ये शब्द कह रहा है. तो इस बारे में अब किसी को कोई डाउट नहीं था. बट इट्स एन इनक्रेडिबल थिंग. हम लोगों ने भी शायद कभी हिस्ट्री में नहीं सुना होगा कि 10 दिन का बच्चा बोले. द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक ऑफ हिज स्पेक्टिकल्स एंड गेज्ड इंटेंटली एट द बेबी. चीफ एस्ट्रोलॉजर ने अपने स्पेक्स रिमूव किए एंड ही स्टार्टेड गेजिंग इंटेंटली. गेज इज़ टू लुक कॉन्स्टेंटली, लगातार देखना. इंटेंटली इज़ वेरी केयरफुली, बहुत ध्यान से वो उस बच्चे को देखने लगा. एंड ही सेड, all those who are born will one day have to die. We don't need your prediction to know that. There would be some sense in it if you could tell us the manner of that death. The royal infant uttered these words in his little squeaky voice. 10 दिन के बच्चे ने अपनी छोटी सी पतली सी आवाज़ में ये शब्द कहे. He said कि हम सबको मालूम है कि जिसका जन्म हुआ है उसे मरना है. इसके लिए हमें आपकी प्रेडिक्शन की ज़रूरत नहीं है. आपकी प्रेडिक्शन में कुछ सेंस तब बनेगी जब आप मेरी डेथ का मैनर बता सकें कि मैं कैसे मरूंगा. द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर ऑन हिज नोज इन वंडर. एवरीवन वाज सरप्राइज्ड. चीफ एस्ट्रोलॉजर ने भी वंडर, ही वाज फुल ऑफ वंडर. वंडर इसलिए
And there were two reasons for that. First one, a baby barely 10 days old open its lips in speech. 10 दिन का बच्चा बोल रहा है. Not only that, it also raises intelligent questions. Second thing which was incredible was, अनबिलीवेबल बात दूसरी ये थी कि वो ना सिर्फ बोल रहा है बल्कि एक इंटेलिजेंट क्वेश्चन रेज कर रहा है, जो बात शायद और किसी ने उस सभा में नहीं बोली. उस बच्चे ने नोटिस, 10 दिन के बच्चे ने पूछा कि उसे उसकी डेथ का मैनर बताया जाए. द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक हिज फिंगर ऑफ हिज नोज एंड फिक्स्ड हिज आइज अपॉन द लिटिल प्रिंस एंड ही एक्सप्लेन्ड दैट द प्रिंस वॉज बॉर्न इन द आवर ऑफ द बुल. कि इस प्रिंस का जन्म जिस आर में हुआ है, जिस समय में हुआ है, उसको बुल गवर्न करता है. एंड द बुल एंड द टाइगर्स आर एनिमीज़. इसीलिए जो टाइगर किंग की डेथ होगी, इस बच्चे की डेथ होगी, वो टाइगर के कारण होगी. ही एक्सप्लेन्ड. You may think that Crown Prince Jung Bahadur was thrown into a quake when he heard the word tiger. That was exactly what did not happen. हम सबको यही लगेगा कि वो 10 दिन का बच्चा डर गया होगा टाइगर का नाम सुन के, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. As soon as he heard it pronounced, the Crown Prince gave a deep growl. Terrifying words emerged from his lips. उस बच्चे ने ये बात सुनते ही कुछ ऐसा कहा, कुछ प्रोनाउंस किया, कुछ बोला. ही नॉट ओनली डिड ही स्पीक, लेकिन वो ही ग्राउल्ड, गुस्से में जैसे गुर्राते हैं, वो गुस्से में बोला. और जो शब्द थे दे वर टेरिफाइंग, डरा देने वाले थे. ही सेड लेट टाइगर्स बीवेयर. तो फिर टाइगर्स मुझसे बीवेयर हो जाएं, कि अब टाइगर्स की बारी है, उन्हें डरने दो. दिस अकाउंट इज़ ओनली अ रूमर राइफ इन प्रतिबंधपुरम. प्रतिबंधपुरम में ये जो घटना है एक रूमर की तरह, अफवाह की तरह है. बट विथ हिंडसाइट वी मे कंक्लूड इट वॉज बेस्ड ऑन सम ट्रुथ. लेकिन जैसे एक कहावत है कि धुआं वहीं उठता है जहाँ आग लगी हो, तो कुछ ना कुछ रियलिटी होगी, तभी ये रूमर फैला हुआ है. तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि कोई ना कोई ट्रुथ के ऊपर बेस्ड ही ये बात होगी. इसके अभी अब जो ये बात हुई, ये जो घटना हुई, इसी के थ्रू बता दिया गया है कि टाइगर किंग का नाम टाइगर किंग क्यों पड़ा. एंड द ऑथर हैज़ केप्ट हिज प्रॉमिस कि वो बिगिनिंग में ही बता देगा कि टाइगर किंग का नाम टाइगर किंग क्यों पड़ा है. तो उसने बिगिनिंग में ही हमें रिवील कर दिया है इसका रीज़न. एंड नाउ द स्टोरी विल प्रोसीड फर्दर. क्राउन प्रिंस जंग बहादुर ग्रू टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाय डे. दिन ब दिन वो बड़ा होने लगा, नॉट ओनली टॉल बट स्ट्रॉन्ग भी होने लगा. नो अदर मिरेकल मार्क्ड हिज चाइल्डहुड डेज अपार्ट फ्रॉम द इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड. इस मिरेकल के अलावा, इस चमत्कार के अलावा और कोई ऐसी घटना नहीं हुई जिसने उसके चाइल्डहुड को स्पेशली मार्क किया हो. बाकी उसका चाइल्डहुड बिल्कुल शांत रहा. बट उसकी अपब्रिंगिंग के बारे में देयर वाज समथिंग स्पेशल. द बॉय ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ. उसे जो मिल्क पिलाया जाता था बच्चे को, वो एक इंग्लिश काउ का मिल्क था. इंग्लैंड की काउ थी वो. ही वॉज ब्रॉट अप बाय एन इंग्लिश नैनी. उसकी केयर करने के लिए जो लेडी रखी गई थी, शी वॉज ऑल्सो एन इंग्लिश लेडी. ट्यूटर्ड इन इंग्लिश बाय एन इंग्लिश मैन. इंग्लिश में ही पढ़ाया जाता था उसे. एंड सॉ नथिंग बट इंग्लिश फिल्म्स. एग्जैक्टली वैसे ही जैसे कि बाकी की इंडियन स्टेट्स के क्राउन प्रिंस के साथ होता था. सो दिस हाईलाइट्स कि जो वो एरा था जब ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में था इंडिया, तो इट वॉज द एरा विच वॉज डोमिनेटेड बाय इंग्लिश कल्चर अमंग द रिच एंड प्रिविलेज पीपल इन इंडिया. जितने भी रिच पीपल थे, प्रिविलेज थे, जो अफोर्ड कर सकते थे, दे ट्राई टू इमिटेट द अपब्रिंगिंग ऑफ इंग्लिश पीपल. तो कितना ज़्यादा उनका इफ़ेक्ट था इंग्लिश कल्चर का इनके ऊपर, ये इसी से हाईलाइट हो रहा है. And the author is again trying to make fun of the upbringing of Indian prince by this statement. When he came of age at 20, the state which had been with the court of wards until then came into his hands. अब जो कोर्ट ऑफ वॉर्ड्स के हाथ में थी किंगडम अभी तक, तो जैसे ही वो 20 ईयर्स की एज उसने अटेन की, किंगडम उसे मिल गई. सो नाउ ही इज़ नॉट प्रिंस, ही इज़ द महाराजा नाउ. वो अब किंग बन चुका है. But everyone in the kingdom remembered the astrologer's prediction. Astrologer की prediction को अभी कोई भूला नहीं था किंगडम में. And many continued to discuss the matter. धीरे धीरे बात महाराजा के भी ईयर्स तक पहुंच गई. And there were innumerable forests in प्रतिबंधपुरम. प्रतिबंधपुरम में जो फॉरेस्ट का नंबर है वो इन्यूमरेबल है, अनकाउंटेबल, अनगिनत फॉरेस्ट थे.
अब ऑब्वियसली जब इतने सारे फॉरेस्ट हैं तो उनमें बहुत सारे टाइगर्स भी होंगे, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट अ टाइम जब टाइगर्स की नंबर जो था टाइगर्स का बहुत ज़्यादा हुआ करता था. अभी वो एक्सटिंक्ट स्पीसीज में आ गए हैं. बट when Britishers were controlling India about 80-90 years ago, तब टाइगर पॉपुलेशन काफ़ी रिच हुआ करती थी. द महाराजा न्यू द ओल्ड सेइंग, और अपने आप को डिफेंड करने के लिए कि वो टाइगर की किलिंग कर रहे हैं, तो महाराजा एक कोट भी दे रहे हैं इस अपने सेल्फ डिफेंस में कि यू मे किल इवन अ काउ इन सेल्फ डिफेंस. जब अपनी जान बचाने की बात हो तो आप एक काउ को भी मार सकते हैं. एंड देयर कुड सर्टनली बी नो ऑब्जेक्शन. और जो टाइगर किंग है वो तो काउ को नहीं मार रहे. काउ क्यों? बिकॉज काउ इज़ अ सेक्रेड एनिमल अकॉर्डिंग टू हिंदू कल्चर. गाय को पूजा जाता है. तो अगर जान बचाने के लिए हम उस सीक्रेट एनिमल को किल कर सकते हैं तो टाइगर की तो कोई बात ही नहीं है. तो महाराजा ने इसे सेल्फ डिफेंस का नाम दिया कि वो आत्मरक्षा कर रहे हैं, और आत्मरक्षा में अगर वो टाइगर को मार भी रहे हैं तो उसमें कुछ गलत नहीं है. एंड ही स्टार्टेड ऑन अ टाइगर हंट. टाइगर हंटिंग उन्होंने शुरू कर दी. बट द थिंग टू बी नोटेड हेयर इज़ कि कोई टाइगर नहीं आया है महाराजा को मारने के लिए कि वो उससे सेल्फ डिफेंस कर रहे हैं, अपने आप को बचा रहे हैं. यहाँ तो महाराजा खुद जा रहे हैं टाइगर के आगे उसे मारने के लिए. सो दिस इज़ नॉट सेल्फ डिफेंस. दिस कैन नॉट बी टर्म्ड एज सेल्फ डिफेंस. ये तो वो अपनी रेकलेस किलिंग को जस्टिफाई कर रहे हैं सिर्फ. द महाराजा वॉज थ्रिल्ड बियॉन्ड मेजर वेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर. अब पहला टाइगर हंट हो गया, बहुत ज़्यादा खुश है महाराजा. एंड ही सेंट फॉर द स्टेट एस्ट्रोलॉजर. स्टेट एस्ट्रोलॉजर को उन्होंने बुलाया, कॉल किया. एंड शोड हिम द डेड बीस्ट, और उन्हें डेड टाइगर दिखाया और डिमांड किया, व्हाट डू यू से नाउ, अब आप क्या कहते हैं. तो एस्ट्रोलॉजर ने कहा, योर मेजेस्टी में किल 99 टाइगर्स इन एग्जैक्टली द सेम मैनर. 99 टाइगर्स को आप ऐसे ही किल कर सकते हैं. देर इज़ नो बिग डील इन इट. 99 टाइगर्स को किल करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. बट द रियल डेंजर जो है वो 100th टाइगर. बट कहकर वो रुक गए. तो महाराजा ने उन्हें मोटिवेट किया, बट व्हाट स्पीक विदाउट फियर. तो उन्होंने आगे कहा कि यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100th टाइगर. जो रियल डेंजर है वो 100th टाइगर के साथ है, तो इसीलिए आपको उसके केस में बिवेयर रहना है. तो महाराजा ने कहा, व्हाट इफ द 100th टाइगर वर ऑल्सो किल्ड, अगर मैं वो भी मार दूँ तो एस्ट्रोलॉजर ने कहा, आई टीयर अप ऑल माई बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी. एस्ट्रोलॉजी की जितनी भी मेरी किताबें हैं मैं वो सब फाड़ दूंगा, उन्हें आग लगा दूंगा. और महाराजा ने पूछा, और क्या? ही सेड, आई शिल कट ऑफ माई टफ्ट, क्रॉप माई हेयर शॉर्ट एंड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट. द एस्ट्रोलॉजर फिनिश्ड ऑन एन इनकॉरेंट नोट. एस्ट्रोलॉजर ने आगे एस्ट्रोलॉजर ने आगे अपनी बात को कंक्लूड किया. ही सेड, आई शिल कट ऑफ माई टफ्ट. मैं अपनी टफ्ट भी कटवा दूंगा. टफ्ट बालों की वो छोटी सी चोटी होती है जो पंडित अपने सर पर पीछे की तरफ रखते हैं, द क्राउन ऑफ द हेड. छोटे से बाल होते हैं थोड़े से, जो उनके लिए बहुत सेक्रेड होते हैं. तो वो भी उसने कहा कि मैं कटवा दूंगा अगर आपने 100 टाइगर्स किल कर दिए तो. अपने बाल छोटे छोटे कटवा लूँगा और एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊँगा, विच वॉज रेफर्ड टू एज अ वेरी इंडिसेंट प्रोफेशन एट दैट टाइम. सो सेकेंड एक्ट ऑल्सो एंड्स हियर. अभी फर्स्ट एक्ट वॉज फोकस्ड जस्ट ऑन टाइगर किंग्स इन्फेंसी, हिज चाइल्डहुड. सेकेंड एक्ट में उनकी अपब्रिंगिंग को बताया गया, हाउ ही एक्वायर्ड किंगडम, और फिर कैसे उन्होंने फर्स्ट टाइगर को किल किया. एंड थर्ड एक्ट बिगिन नाउ. यू कैन लुक एट द पिक्चर ऑल्सो हियर. टाइगर किंग है और सामने एस्ट्रोलॉजर हैं, चीफ एस्ट्रोलॉजर. Third act, from that day onwards, it was celebration time for all the tigers inhabiting Pratibandhpuram. प्रतिबंधपुरम में रहने वाले सभी टाइगर्स के लिए उस दिन से सेलिब्रेशन टाइम था. अगेन इट्स एन आयरॉनिकल स्टेटमेंट और बहुत ह्यूमरस भी है. सेलिब्रेशन टाइम क्यों था, क्यों खुश हो गए टाइगर्स? द रीज़न इज मेंशन फर्दर. द स्टेट बैंड टाइगर हंटिंग बाय एनीवन एक्सेप्ट द महाराजा. A proclamation was issued to the effect that if anyone dared to fling as much as a stone at a tiger, all his wealth and property would be confiscated. The meanings of the difficult words here. Proclamation is announcement regarding the future. Announcement. Proclamation is announcement. Fling is to throw, फेंकना. And confiscate is जब्त कर लेना. तो स्टेट ने, गवर्नमेंट ने, जो टाइगर किंग है उसकी किंगडम की तरफ से एक नोटिस इशू किया गया
कि टाइगर हंटिंग महाराजा के अलावा बाकी सबके लिए बैन है। तो महाराजा के अलावा और कोई भी टाइगर हंटिंग नहीं कर सकता है। इसके लिए एक अनाउंसमेंट भी की गई कि अगर किसी ने टाइगर के ऊपर एक पत्थर तक भी फेंका तो उसकी सारी वेल्थ और प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट कर ली जाएगी। तो अब जब पत्थर फेंकना ही नहीं अलाउड है तो उसे किल करना तो बहुत दूर की बात है। और इसमें टाइगर्स के लिए सेलिब्रेशन किस लिए है? क्योंकि अब वो उन्हें सिर्फ महाराजा ही मारेंगे, वो किसी ऑर्डिनरी आदमी के हाथों से नहीं मरेंगे। द स्टेटमेंट इज़ आयरॉनिकल बिकॉज दे आर गोइंग टू डाई एनी वे, मरना तो उन्हें है ही। अब कोई आम आदमी मारे या महाराजा मारे उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो द ऑथर हैज़ अगेन ट्राई टू क्रिएट ह्यूमर हियर कि सेलिब्रेट करने लगे टाइगर्स, क्योंकि उन्हें पता है कि अब हमें सिर्फ महाराजा ही मारेंगे। The Maharaja vowed that he would attend to all other matters only after killing the 100 tigers. Initially, the king seemed well set to realize his ambition. Vow is to take an oath, शपथ लेना। तो महाराजा ने शपथ ली कि वो अपनी किंगडम के बाकी सब काम अब तभी देखेंगे जब 100 टाइगर्स किल कर देंगे। कितना रेकलेस, कितना केयरलेस डिसीजन है एक ऐसे आदमी का जिसके पास इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हों। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो थी पूरी किंगडम को ध्यान में रखने की, पूरी किंगडम को संभालने की। उस तरफ महाराजा ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसने डिसाइड कर दिया कि अब मैं किंगडम के बाकी सब काम भी तभी देखूंगा जब ये सो कॉल्ड अपने 100 टाइगर्स की टैली को अचीव कर लेगा। तो कितना केयरलेस डिसीजन है एक ऐसे आदमी के बिहाफ पर जिसके ऊपर इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हों। शुरू में लगा कि वो अपने एम्बिशन को जल्दी ही अचीव कर लेंगे महाराजा। ऐसा नहीं था दैट ही फेस नो डेंजर, कोई खतरा ना हुआ हो कभी, सब कुछ केक वॉक नहीं थी। देयर वर टाइम्स व्हेन द बुलेट मिस्ड इट्स मार्क, ऐसा भी टाइम होता था कि बुलेट अपना मार्क मिस कर देती। द टाइगर लेफ्ट अपॉन हिम एंड ही फॉट द बीस्ट विद हिज बेयर हैंड्स, टाइगर जंप करके उसके ऊपर आ जाता और उसे बीस्ट के साथ खाली हाथ लड़ना पड़ता, क्योंकि गन भी उसके हाथ से गिर जाती थी। सो ही हैड टू फाइट विद द टाइगर बेयर हैंड्स, और टाइगर उसके ऊपर उसकी चेस्ट पर होता था। बट ईच टाइम इट वाज द महाराजा हु वॉन। तो ईजी नहीं था, बट महाराजा हर बार जीतते रहे। एट अनदर टाइम ही वॉज इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन। अब जिस एपिसोड का हम अब डिस्कशन करने वाले हैं, इट्स एन इम्पॉर्टेंट एपिसोड और इसे रिंग एपिसोड के बारे में नाम से भी जाना जाता है। और इस पे ये क्वेश्चन भी बेस्ड आता है, व्हेन वाज महाराजा इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन। तो थ्रोन उनके हाथों से छिनने का खतरा कब हुआ, दिस एपिसोड विल डिस्कस नाउ। अ हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड प्रतिबंधपुरम। एक हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर थे, वो प्रतिबंधपुरम में आए। एंड सिंस hunting was a very famous profession, famous pastime at that time, बहुत रिच और पावरफुल जो लोग थे उनको हंटिंग करना बहुत पसंद था। तो ऑब्वियसली जब एक हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर प्रतिबंधपुरम में आए, एंड द वन हु वाज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर्स ऑल्सो, उनको टाइगर हंट करना पसंद भी था, एंड फॉन्डर ऑफ बीइंग फोटोग्राफ्ड विद द टाइगर ही हैड शॉट। लेकिन उससे भी ज़्यादा पसंद उन्हें ये था कि वो टाइगर के साथ फ़ोटो खिंचवाएं, मरे हुए टाइगर के साथ। एज़ यूजुअल जब वो प्रतिबंधपुरम में आए, सो ही एक्सप्रेस्ड हिज विश टू हंट टाइगर्स। उनकी आते ही इच्छा ये थी कि वो उन्हें टाइगर हंटिंग पर जाना है, ये उनका फेवरेट स्पोर्ट था। बट द महाराजा वॉज फर्म इन हिज रिजॉल्व। लेकिन हमें मालूम है कि महाराजा तो पहले ही ये प्रोक्लेमेशन करा चुके हैं कि उनके अलावा टाइगर हंटिंग बैन है प्रतिबंधपुरम में, कोई और टाइगर हंटिंग नहीं कर सकता। तो अब उनके लिए बड़ी दुविधा, बड़ी डिलेमा की बात थी कि वो एक हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर को ये परमिशन तो दे ही नहीं सकते हैं कि वो उनके यहाँ पर टाइगर हंटिंग करें। मोर ओवर अगर उन्हें मना कर देंगे तो मना करने पर उनकी जो छोटी सी स्टेट है ये भी छिनने का खतरा बन जाएगा। तो ब्रिटिशर्स उस पर कंट्रोल कर लेंगे और इस एरिस्टोक्रेटिक मेथड को अबॉलिश कर देंगे, राजा को वहाँ से निकाल दिया जाएगा। तो ये भी डर है उन्हें। बट समहाउ ही रिफ्यूज्ड परमिशन, मना कर दिया उन्होंने। एंड ही ऑफर्ड सम अदर हंट्स, और कुछ उन्होंने अलग से ऑप्शंस दिए। दीज ऑप्शंस आर अगेन वेरी ह्यूमरस। इनके थ्रू कल्की ने अगेन हैज़ ट्राइड टू रेज ह्यूमर हियर। ही सेड आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट, अगर आप चाहे तो मैं बोर हंट आपके लिए ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ। बोर इज़ पिग।
चाहे तो माउस हंट भी आपके लिए ऑर्गेनाइज किया जा सकता है, और तो और मस्कीटो हंट तक भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, बट टाइगर हंट दैट इज़ इम्पॉसिबल, उसे तो आप भूल जाइए। अब ब्रिटिश ऑफिसर भी कोई कम थोड़ी होते हैं। उनका सेक्रेटरी आया, उसने महाराजा के दीवान से कहा कि दुरई हिमसेल्फ डिड नॉट हैव टू किल द टाइगर। दुरई इज़ एन इंडियन वर्ड जो ब्रिटिश ऑफिसर्स के लिए रेफ़र किया जाता था, और ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ को दुरई सानी कहा जाता था। तो उस सेक्रेटरी ने कहा कि ब्रिटिश ऑफिसर खुद नहीं किलिंग करना चाहते हैं, द महाराजा कुड डू द एक्चुअल किलिंग। टाइगर हंटिंग महाराजा ही कर लें, उन्हें सिर्फ डेड टाइगर के साथ फ़ोटो खिंचवानी है गन होल्ड करके, एंड स्टैंडिंग ओवर द टाइगर्स कैरकेस। कैरकेस इज डेड बॉडी, टाइगर की डेड बॉडी के साथ, उसकी स्किन के साथ फ़ोटो खिंचवाना चाहते हैं। बट द महाराजा वुड नॉट अग्री इवन टू दिस प्रपोजल। महाराजा ने ये बात भी नहीं मानी। If he relented now, what would he do if other British officers turned up for tiger hunting? उनका डर ये था कि अगर उन्होंने इसको हाँ बोली तो और ब्रिटिश ऑफिसर भी आ जाएंगे यहाँ पर हंटिंग के लिए, तो उन्हें वो क्या बोलेगा। तो इसीलिए ही डिड नॉट रिलेंट। रिलेंट इज़ टू बो डाउन, झुकना। उनके सामने नहीं झुका। बिकॉज ही प्रिवेंटेड अ ब्रिटिश ऑफिसर फ्रॉम फुलफिलिंग हिज डिज़ायर, द महाराजा स्टूड इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम हिमसेल्फ इटसेल्फ। तो अब महाराजा के ऊपर खतरा ये था, क्योंकि उसने ब्रिटिश ऑफिसर को मना कर दिया टाइगर हंटिंग के लिए, तो अब उससे उनका राज्य छिन सकता है। द महाराजा एंड द दीवान हेल्ड डेलिबरेशंस ओवर दिस इशू। डेलिबरेशन इज कंसल्टेशन। उन लोगों ने इस बात पर, इस इशू पर कंसल्टेशन की। एज अ रिजल्ट अ टेलीग्राम वॉज डिस्पैच्ड फोर्थविथ टू अ फेमस ब्रिटिश कंपनी ऑफ जूलर्स इन कैलकटा। और जो सल्यूशन निकला वो ये निकला कि कैलकटा में एक फेमस जूलर थे, उन्हें एक टेलीग्राम भेजा गया। महाराजा और उनके दीवान ने एक टेलीग्राम भेजा जिसमें लिखा था, सेंड सैम्पल्स ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स ऑफ डिफरेंट डिज़ाइंस। अब यहाँ पर जो मोटिव था वो ये था कि कुछ 50 रिंग्स आ गई। महाराजा का पर्पस ये था कि अगर वो दुरई सानी ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ को खुश कर देंगे ये डायमंड रिंग्स गिफ्ट देकर, तो ब्रिटिश ऑफिसर उनसे नाराज़ नहीं होगा और उनके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लेगा। तो जैसे ही उन्होंने टेलीग्राम भेजा, कैलकटा में कुछ 50 रिंग्स के सैंपल आ गए। महाराजा ने पूरे का पूरा लॉट ब्रिटिश ऑफिसर की गुड लेडी, उनकी वाइफ को सेंड कर दिया। The king and the minister expected the दुरई सानी to choose 1 or 2 rings and send the rest back. उन्हें लगा कि ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ 1 या 2 रिंग रख लेगी और बाकी की रिंग्स वापस भेज देंगी। Within no time at all, the दुरई सानी sent her reply, thank you very much for your gifts. लेकिन ये क्या, 1 या 2 दिन में ही उनके पास जल्दी से एक रिप्लाई आ गया जिसमें लिखा था थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट्स, विच मेंट कि उन्होंने तो पूरी की पूरी 50 रिंग्स का लॉट रख लिया था ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ ने। और 2 ही दिन में उन्हें एक बिल भी मिल गया। दैट बिल वाज फॉर 3 लाख ऑफ रुपीज़ जो उस ब्रिटिश जूलर ने भेजा कैलकटा से। एंड नाउ 3 लाख रुपीज़ वाज अ ह्यूज सम ऑफ मनी एट दैट टाइम। उसे अबाउट 100 टाइम्स तो आज शायद इन्फ्लेशन हो ही चुकी है। तो 3 लाख वाज अ ह्यूज सम। डायमंड रिंग्स का बिल था वो, बट महाराजा वॉज हैप्पी। ऑल्दो 3 लाख रुपीज़ तो उन्होंने लूज़ कर दिए थे, बट ही हैड मैनेज टू रिटेन हिज किंगडम। अपनी किंगडम को उन्होंने बचा लिया था, तो इसलिए वो खुश थे। तो एक डेंजर को तो यहाँ पे वो डील कर चुके हैं, कुछ टाइगर्स भी मार चुके हैं। अब कुछ आगे और प्रॉब्लम्स आएंगी विच विल बी डिस्कस्ड इन एक्ट नंबर 4। द महाराजा's टाइगर हंट continued to be highly successful and within 10 years he was able to kill 70 tigers. अगले 10 सालों में, which meant by the age he was 30, उन्होंने 70 टाइगर्स मार दिए थे 30 साल की एज तक। And then an unforeseen hurdle brought his mission to a standstill. एक अनफोर्सिन हर्डल, अनफोर्सिन विच वॉज नॉट एक्सपेक्टेड, किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। हर्डल इज़ रुकावट, उससे उनका मिशन रुक गया, 70 टाइगर्स पर ही रुक गया। द प्रॉब्लम वॉज द टाइगर पॉपुलेशन बिकेम एक्सटिंक्ट इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरम। प्रतिबंधपुरम के जंगलों में टाइगर्स एक्सटिंक्ट हो गए, ख़त्म हो गए। मे बी 70 टाइगर्स ही थे वहाँ पर जो सारे के सारे महाराजा ने किल कर दिए।
Who knows whether the tigers practiced birth control or committed harakiri or simply ran away from the state because they desired to be shot by British hands alone. These are some of again humorous statements given by the author कि क्या मालूम कि टाइगर्स कहाँ चले गए, उन्होंने कोई बर्थ कंट्रोल प्रैक्टिस कर लिया या वो स्टेट से भाग गए क्योंकि वो सिर्फ ब्रिटिशर्स के हाथों से मरना चाहते थे, किसी इंडियन के हाथों से नहीं. तो रीज़न किसी को नहीं मालूम, बट द टाइगर्स बिकेम एक्सटिंक्ट. वन डे द महाराजा सेंट फॉर द दीवान. महाराजा को कोई सोल्यूशन चाहिए था तो उन्होंने दीवान को बुलाया. ही सेड, दीवान साहिब, aren't you aware of the fact that 30 tigers still remain to be shot down by this gun of mine? आपको मालूम है ना कि अभी 30 टाइगर्स रहते हैं जो मुझे इस गन से मारने हैं. ही asked brandishing his gun. अपनी गन को ब्रांडिश करते हुए, हवा में लहराते हुए उन्होंने कहा. Shuddering at the sight of the gun, the Diwan cried out, Your Majesty, I am not a tiger. और गन को अपने सामने हवा में लहराते हुए देखकर दीवान डर गया. He said, आई एम नॉट अ टाइगर, मैं टाइगर नहीं हूँ, मुझे मत मारिए. महाराजा इमीजिएटली सेड, विच इडियट वुड कॉल यू अ टाइगर? कौन इडियट होगा जो तुम्हें टाइगर बोलेगा? तो दीवान ने कहा, नो आई एम नॉट अ गन ऑल्सो, मैं गन भी नहीं हूँ. तो महाराजा सेड, यू आर नाइदर टाइगर नॉर गन दीवान साहिब. आई समन्ड यू हेयर फॉर अ डिफरेंट पर्पस. आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड. तुम ना तो टाइगर हो ना गन हो, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन मैंने आपको आज एक डिफरेंट पर्पस के लिए बुलाया है. मैं शादी करना चाहता हूँ. द दीवान बिगेन टू बैबल इवन मोर. वो और ज़्यादा बड़बड़ाने लगा दीवान. ही सेड, योर मेजेस्टी, आई हैव 2 वाइव्स ऑलरेडी. इफ़ आई मैरी यू, मेरी तो पहले से ही 2 बीवियाँ हैं, मैं आपसे कैसे शादी कर सकता हूँ? तो किंग सेड, डोंट टॉक नॉनसेंस. व्हाई शुड आई मैरी यू? व्हाट आई वॉन्ट इज़ अ टाइगर. मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है, मुझे तो एक टाइगर चाहिए. दीवान ने इसे भी बहुत ह्यूमरस वे में आगे कहा. ही सेड, योर मेजेस्टी, प्लीज़ थिंक इट ओवर. ज़रा ध्यान से सोचिए. योर एंसेस्टर्स, आपके जो पूर्वज थे, दे वर मैरिड टू द स्वॉर्ड. ऐसा कहा जाता है, कहावत होती है कि जो योद्धा होते हैं, वीर होते हैं, वो अपनी तलवार से या गन से या जो भी उनका वेपन होता है उसी से ही शादी करते हैं, क्योंकि वो उनके साथ रहती है हमेशा उनकी जान की रक्षा के लिए. इफ़ यू लाइक मैरी द गन, लेकिन आप अगर चाहें तो स्वॉर्ड ना से ही गन से शादी कर लें. थिंक अबाउट इट, अ टाइगर किंग इज़ मोर देन इनफ फॉर द स्टेट. आप एक टाइगर किंग है तो सही, इट डजंट नीड अ टाइगर क्वीन एज वेल. तो टाइगर से शादी मत करिए, इसको टाइगर क्वीन प्रतिबंधपुरम को नहीं चाहिए. द महाराजा गेव अ लाउड क्रैक ऑफ लाफ्टर. ज़ोर से हंसे महाराजा. ही सेड, आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मैरिंग ईदर अ टाइगर और अ गन. मुझे ना तो टाइगर से शादी करनी है ना गन से. आई वॉन्ट अ गर्ल फ्रॉम द रैंक्स ऑफ ह्यूमन बींग्स. मुझे तो एक लड़की से शादी करनी है जो ह्यूमन बींग्स में से हो. लेकिन उसके लिए भी महाराजा की एक कंडीशन थी, एक शर्त थी. ही आस्क्ड दीवान टू ड्रॉ अप स्टैटिस्टिक्स ऑफ टाइगर पॉपुलेशन इन डिफरेंट नेटिव स्टेट्स. Next, he asked him to investigate if there is a girl that the Maharaja can marry in the royal family of a state with a large tiger population. महाराजा ने कहा कि दीवान से कि पहले तो तुम एक स्टैटिस्टिक्स ड्रॉ करो कि किस किस राज्य में कितने टाइगर्स हैं जंगलों में. नेक्स्ट तुम्हें ये देखना है कि जिस राज्य में जंगल हैं, क्या वहाँ की रॉयल फैमिली में वहाँ के राजा की कोई बेटी शादी के लायक एज की है जिससे मैं शादी कर सकूं. द आइडिया वॉज कि जब शादी हो जाएगी तो महाराजा को कोई टाइगर हंटिंग से नहीं रोकेगा, तो महाराजा अपनी फादर इन लॉ की किंगडम में जाकर टाइगर हंटिंग कर सकते हैं. दिस वॉज द आइडिया. The Diwan followed his orders. He found the right girl from a state which possessed a large number of tigers. दीवान ने महाराजा के ऑर्डर्स को फॉलो किया और एक लड़की मिल भी गई शादी के लिए जिसके फादर की किंगडम में टाइगर्स भी थे. महाराजा जंग बहादुर killed 5 or 6 tigers each time he visited his father-in-law. महाराजा जंग बहादुर जब भी अपने फादर इन लॉ के यहाँ जाते तो 5 या 6 टाइगर्स हर बार मार आते. In this manner, 99 tiger skins adorn the walls of the reception hall in Pratibandhapuram Palace. तो अब 99 टाइगर्स तो मर चुके हैं. एंड इट्स एन आयरनी कि महाराजा ने शादी करने का डिसीजन लिया, अपनी लाइफ का इतना इम्पोर्टेंट डिसीजन, एंड दैट आइडिया वाज गवर्न बाय द फैक्ट कि उन्हें उस जगह पे उस लड़की से शादी करनी है
जहाँ पर जिसके फादर की किंगडम में टाइगर्स होंगे। तो कितना बेसलेस, कितना रेकलेस डिसीजन था ये महाराजा का। The Maharajas, now Act 5, the Maharaja's anxiety reached a fever pitch when there remained just one tiger to achieve his tally of 100. अब 100 टाइगर्स पूरे करने के लिए एक टाइगर रह गया है। 99 टाइगर्स मर चुके हैं और एक टाइगर रह गया है, क्योंकि उनके फादर इन लॉ की किंगडम में भी अब टाइगर्स ख़त्म हो चुके हैं। He had this one thought during the day and the same dream at night. By this time, the tiger farms had run dry even in his father-in-law's kingdom. फादर इन लॉ की किंगडम में भी क्योंकि टाइगर्स ख़त्म हो गए हैं, तो दिन में भी एक यही थॉट सारा दिन टाइगर किंग के माइंड में रहता, और पूरी रात उन्हें यही सपने आते कि उन्हें 100th टाइगर कहाँ से मिले जिसे वो हंट करके अपना टारगेट अचीव कर सकें। इट बिकेम इम्पॉसिबल टू लोकेट टाइगर्स एनीवेयर। टाइगर कहीं नहीं मिल रहे थे। येट ओनली वन मोर वॉज नीडेड। If he could kill just one that one single beast, the Maharaja could have no fear left. और अगर वो एक टाइगर मिल जाएगा तो उसे मारने के बाद महाराजा को कोई डर नहीं रहेगा। He could give up tiger hunting altogether. और वो टाइगर हंटिंग छोड़ सकते थे इसके बाद। But he had to be extremely careful with that last tiger. What had the late chief astrologer said? चीफ एस्ट्रोलॉजर ने भी यही कहा था। लेट चीफ एस्ट्रोलॉजर मीन्स कि चीफ एस्ट्रोलॉजर हैज़ ऑलरेडी डाइड, वो मर चुके हैं। लेकिन उनकी सेइंग महाराजा को अभी भी याद है कि उन्होंने कहा था कि इवन आफ्टर किलिंग 99 टाइगर्स ही शुड बी वेयर ऑफ द 100th, कि 99 टाइगर्स मारने के बाद भी जो रियल डेंजर है वो 100th टाइगर के साथ है। ट्रू इनफ, द टाइगर वॉज अ सैवेज बीस्ट आफ्टर ऑल। है तो वाइल्ड एनिमल, कभी भी जान ले सकता है। सो वन हैड टू बी वेरी ऑफ इट। तो उससे बहुत ध्यान रखना पड़ेगा टाइगर से। ये बात तो महाराजा को मालूम ही थी। बट वेयर वॉज दैट 100th टाइगर टू बी फाउंड? लेकिन ये मिलेगा कहाँ? इट सीम्ड ईजियर टू फाइंड टाइगर्स मिल्क देन अ लाइव टाइगर। और अब तो ऐसा लगने लगा था कि टाइगर मिल्क, टाइगर इज़ मेल और मेल स्पीसीज डू नॉट गिव मिल्क, लेकिन टाइगर मिल्क मिल सकता है, लेकिन लाइव टाइगर ढूंढना नामुमकिन था। दस द महाराजा वॉज संक इन ग्लूम। ग्लूम इज सैडनेस। महाराजा सैडनेस में, दुख में डूब गए, बहुत दुखी हो गए, बहुत डिसअपॉइंटेड थे। बट सून केम द हैप्पी न्यूज़ विच डिस्पेल्ड दैट ग्लूम। लेकिन सडनली उन्हें एक न्यूज़ मिला जिससे उनका ग्लूम, उनकी सैडनेस मोमेंटरीली गायब हो गई। In his own state, sheep began to disappear frequently from a hillside village. Hillside के गांव में से sheep disappear हो रही थी, और sheep disappear होने का मतलब था कि sheep को कोई टाइगर खा रहा है। It was first ascertained that this was not the work of Khadir Mian Sahib or Virasamy Naikar, both famed for their ability to swallow sheep whole. दो लोग, एक आदमी का नाम है खादिर मियाँ साहिब और दूसरे हैं वीरासामी नाइकर। पहले इन दोनों के बारे में पता किया गया कि कहीं ये उनका काम तो नहीं है, क्योंकि दोनों की ईटिंग कैपेसिटी इतनी अच्छी है कि वो पूरी की पूरी शीप एक बार पे खा जाते थे। तो पहले ये पता किया गया कि कहीं वो शीप खा रहे हों और महाराजा खुश हो जाएं कि ये टाइगर का काम है। तो पता चला कि भाई नहीं, इनका काम नहीं है। श्योरली अ टाइगर वॉज एट वर्क। द विलेजर्स रैन टू इन्फॉर्म द महाराजा। विलेजर्स दौड़े महाराजा को ये खुशखबरी सुनाने के लिए। महाराजा ने भी अनाउंस कर दिया उस खुशी में। ही सेड अ 3-year exemption फ्रॉम ऑल टैक्सेस फॉर दैट विलेज एंड सेट आउट ऑन द हंट एट वंस। जिस गांव के लोग ये खबर लेकर आए थे वहाँ पर महाराजा ने अनाउंसमेंट करा दी कि अगले 3 साल तक के लिए उनका सारा टैक्स एग्जम्प्ट कर दिया गया, उन्हें कोई टैक्स नहीं भरना है, क्योंकि उन्होंने महाराजा को 100th टाइगर की न्यूज़ दी थी। और महाराजा भी हंटिंग के लिए चले गए। द टाइगर वॉज नॉट ईजीली फाउंड। लेकिन इतनी ईजीली थोड़ी ही मिलने वाला था भाई। इट वॉज द 100th टाइगर, कहीं मिल ही नहीं रहा था। इट सीम्ड एज इफ इट हैड वॉन्टनली हिड इटसेल्फ इन ऑर्डर टू फ्लाउट द महाराजाज विल। ये तो ऐसे लग रहा था जैसे वो वैंटनली, जानबूझकर छुप गए हैं महाराजा की विल को, महाराजा की इच्छा को पूरी ना होने देने के लिए। द महाराजा वॉज इक्वली डिटर्मिन्ड। महाराजा भी कोई कम नहीं है, उनकी डिटर्मिनेशन भी कम नहीं है। वो भी अपना कैंप लगाकर, धरना देकर जंगल में ही बैठ गए। ही रिफ्यूज टू लीव द फॉरेस्ट अंटिल
The tiger was found. As the days passed, the Maharaja's fury and obstinacy mounted alarmingly. जैसे जैसे दिन गुजरे, महाराजा की फ्यूरी इज एंगर, एंड ऑब्स्टिनेसी स्टबर्ननेस, जिद, उनकी जिद और उनका गुस्सा दोनों ही बढ़ने लगे. माउंट मीन्स टू इंक्रीज, बढ़ना, और बढ़ भी कैसे रहे हैं, अलार्मिंग रेट पर, बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं. तो महाराजा बहुत ज़्यादा गुस्सा हैं, बहुत ज़्यादा जिद में बैठे हैं. और क्या गुस्सा उनका कहाँ निकलता था, मैनी ऑफिसर्स लॉस्ट देयर जॉब, ऑफिसर्स को उनकी जॉब से हाथ धोने पड़े. गुस्से में महाराजा सबको निकाले जा रहे थे नौकरी से. One day, when his rage was at its height, the Maharaja called the Diwan and ordered him to double the land tax forthwith. ऐसा ही एक दिन जब महाराजा गुस्से में बैठे थे, उन्होंने दीवान को बुलाया और उसे ऑर्डर दिया कि आज से लैंड टैक्स डबल कर दो. तो महाराजा ने समझाया कि द पीपल विल बिकम डिसकंटेंटेड. डिसकंटेंट इज डिससेटिस्फाइड, लोग डिससेटिस्फाइड हो जाएंगे. और अगर एक बार आपकी प्रजा डिससेटिस्फाइड हो गई, लोग नाराज़ हो गए, तो आपकी जो स्टेट है इस पर इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ब्रिटिशर्स का कंट्रोल हो जाएगा. तो इसीलिए सोच समझ कर डिसीजन लो. तो महाराजा कहते हैं इन दैट केस यू मे रिज़ाइन फ्रॉम योर पोस्ट, तो तुम अपनी जॉब छोड़ दो, इस्तीफ़ा दो और जाओ यहाँ से. द दीवान वेंट होम कन्विंस्ड दैट इफ द महाराजा डिड नॉट फाइंड द टाइगर सून द रिजल्ट कुड बी कैटेस्ट्रॉफिक. कैटेस्ट्रॉफिक इज़ डिस्ट्रक्टिव, विनाशकारी. दीवान घर चले गए, लेकिन उन्हें पक्का पता था कि अगर ये 100th टाइगर ना मिला तो जो इसके रिजल्ट्स होने वाले हैं वो बहुत डिस्ट्रक्टिव होने वाले हैं. एंड ही फेल्ट लाइक रिटर्निंग टू हिम ओनली व्हेन ही सॉ द टाइगर विच हैड बीन ब्रॉट फ्रॉम द पीपल्स पार्क इन मद्रास एंड केप्ट हिडन इन हिज हाउस. तो अब दीवान ने एक उसके पास ऑल्टरनेटिव उसे मिल चुका था, सल्यूशन मिल चुका है. पीपल्स पार्क मद्रास में एक जगह है जहाँ से उन्होंने एक टाइगर अरेंज कर लिया था और उसे अपने घर मंगवा लिया था. तो वो जो टाइगर है वो अभी दीवान के घर में बंधा हुआ है, जस्ट लाइक अ टेम्ड डोमेस्टिक एनिमल. At midnight, when the town slept in peace, the Diwan and his wife, aged wife, dragged the tiger to the car and shoved it into the seat. Midnight, आधी रात के समय जब बाकी लोग सो गए, तो दीवान और उनकी एजेड वाइफ, बूढ़ी वाइफ, दोनों टाइगर को धक्के दे देकर, ड्रैग घसीटना, ज़बरदस्ती ड्रैग करके कार तक लाए. टाइगर आना ही नहीं चाह रहा था और वो उसे ज़बरदस्ती लाए. एंड शोव्ड इट इनटू द सीट. शोव इज़ पुश, उसे ज़बरदस्ती पुश करके कार में पीछे की सीट पर बैठा दिया. द दीवान हिमसेल्फ ड्रोव द कार स्ट्रेट टू द फॉरेस्ट वेयर द महाराजा वॉज हंटिंग. फॉरेस्ट में जहाँ महाराजा हंटिंग कर रहे हैं, बैठे हैं धरना देकर जंगल में कि उन्हें जब तक टाइगर नहीं मिलेगा वो वापस नहीं जाएंगे. दीवान सीधा कार ड्राइव करके वहीं पहुँचे. When they reached the forest, the tiger launched its सत्याग्रह and refused to get out of the car. अब जब दीवान जंगल में पहुंच गए और टाइगर को बाहर निकालने लगे, तो टाइगर तो जैसे सत्याग्रह पर बैठ गया, ज़िद पे बैठ गया और उसने बाहर निकलने से मना कर दिया कि मैं तो कार से नहीं निकलूँगा. The Diwan was thoroughly exhausted in his efforts to howl the beast out of the car and push it down to the ground. दीवान बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गए, थक गए उसे ज़बरदस्ती धक्के दे देकर बाहर निकालने में. किसी तरह उन्होंने ड्रैग करके टाइगर को बाहर निकाला ग्राउंड पर. On the following day, the same old tiger wandered into the Maharaja's presence and stood as if in humble supplication. अगले दिन अब दीवान ने टाइगर को बाहर निकाल कर छोड़ दिया कि यहीं जंगल में होगा तो महाराजा के आगे आ ही जाएगा. On the following day, the same old tiger, वही टाइगर महाराजा के सामने आया और महाराजा की प्रेजेंस में आगे ऐसे खड़ा हो गया जैसे बहुत हम्बली उनके आगे सर झुकाकर उनके नौकर खड़े होते हैं. बिल्कुल वैसे चुपचाप महाराजा के आगे आकर सर झुकाकर खड़ा हो गया, जैसे कि पूछ रहा हो, मास्टर व्हाट डू यू कमांड ऑफ मी, मेरे लिए क्या ऑर्डर है. It was with boundless joy that the Maharaja took careful aim at the beast and the tiger fell in a crumpled heap. महाराजा ने बहुत जॉयफुली उस बीस्ट को एम किया और वो टाइगर ढेर में गिर गया, नीचे गिर गया. महाराजा बहुत खुश. He thought that I have killed the 100th tiger now and my vow has been fulfilled. उन्होंने अपनी शपथ पूरी कर ली थी, अपनी प्रॉमिस पूरा कर लिया था, तो महाराजा बहुत खुश थे. He was overcome with elation. Elation is joy. खुशी में बहुत ज़्यादा डूब गए थे महाराजा. And he ordered the tiger to be brought to the capital in grand procession.
उन्होंने अपने आदमियों को ऑर्डर दिया कि एक ग्रैंड प्रोसेशन में, एक बहुत बड़ा प्रोसेशन जुलूस टाइप निकाला जाए, एक बहुत अच्छा प्रोग्राम किया जाए जिसमें इस टाइगर की डेड बॉडी को शहर तक लाया जाएगा, प्रतिबंधपुरम तक. एंड द महाराजा हेस्टेंड अवे इन हिज कार. जल्दी से बैठकर कार में महाराजा चले गए. आफ्टर द महाराजा लेफ्ट, द हंटर्स वेंट टू टेक अ क्लोजर लुक एट द टाइगर. महाराजा के जाने के बाद हंटर्स टाइगर के पास गए, उसे क्लोजली देखा. एंड द टाइगर लुक बैक एट देम रोलिंग इट्स आइज इन बैफलमेंट. और टाइगर उन्हें वापस देख रहा था अपनी बड़ी बड़ी आंखों के साथ, बैफलमेंट, सरप्राइज में, which meant that the tiger was not killed. The men realized that the tiger was not dead. The bullet had missed it. बुलेट ने मिस कर दिया था अपना मार्क. और जो टाइगर था, it had fainted from the shock of the bullet whizzing past. पास से गुजरती हुई गोली की तेज़ आवाज़ से वो बेहोश हो गया था. The hunters wondered what they should do. अब ये बात तो श्योर थी कि वो महाराजा को तो नहीं कह सकते कि 100th टाइगर नहीं मरा है, क्योंकि वो ऑलरेडी इतने गुस्से में थे कि जो ये न्यूज़ देता शायद उसे ही मार देते. सो दे डिसाइडेड दैट द महाराजा मस्ट नॉट कम टू नो दैट ही मिस्ड हिज टारगेट, एंड इफ़ ही डिड दे कुड लूज देयर जॉब्स. अगर ऐसा हुआ तो वो उनकी जॉब जा सकती थी. तो उन्हीं में से एक हंटर ने, ही टुक केयरफुल एम, उसने एम लिया फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 1 फुट और टाइगर को शूट कर दिया. तो अब की बार बिना मार्क मिस हुए टाइगर मर गया. टाइगर तो मर गया, 100th टाइगर, लेकिन महाराजा के हाथों नहीं मरा. Then as commanded by the king, the dead tiger was taken in procession through the town and buried. A tomb was erected over it. ग्रैंड प्रोसेशन में टाइगर को शहर तक ले जाया गया, उसे बरी दबाया गया, उसके ऊपर एक टूम बनवाई गई उसकी याद में, क्योंकि ये 100th टाइगर था, इट वॉज स्पेशल टाइगर. A few days later, the Maharaja's son's 3rd birthday was celebrated. महाराजा ने सब चीज़ों को इतना निगलेक्ट कर रखा था, उन्होंने अपनी किंगडम को, अपनी प्रजा की सेवा, अपने परिवार, सबको निगलेक्ट कर रखा था कि कुछ दिनों बाद महाराजा के बेटे का 3रा बर्थडे था. Until then, the Maharaja had given his entire mind to the tiger hunting. He had no time to spare for the crown prince. But now the king turned his attention to the child. अब तक अपने बच्चे को इतना निगलेक्ट करने के बाद अब महाराजा ने अपनी सारी अटेंशन अपने बच्चे पर डाइवर्ट कर दी. एंड ही विश टू गिव हिम सम स्पेशल गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे. तो गिफ्ट ढूंढने के लिए वो मार्केट चल पड़े. ही वेंट टू द शॉपिंग सेंटर इन प्रतिबंधपुरम. वहाँ पर शॉपिंग सेंटर में उन्होंने हर शॉप सर्च की, लेकिन उन्हें कोई भी सूटेबल गिफ्ट नहीं मिला जो वो अपने बेटे को दे सकें. फाइनली उन्हें एक वुडन टाइगर दिखा एक टॉय शॉप में, और उन्होंने डिसाइड किया कि यही परफेक्ट गिफ्ट है, क्योंकि उनके माइंड में तो दिन रात टाइगर ही चला आ रहा था अब तक. द वुडन टाइगर कॉस्ट ओनली 2 आनाज एंड अ क्वार्टर. 2 आनाज एंड अ क्वार्टर इज 2:1/4 क्वार्टर, एंड इट वॉज अ वेरी स्मॉल सम ऑफ मनी एट दैट टाइम. 1 रुपी में 16 आनाज होते थे, और ये तो जस्ट 2 आना और 1/4 आना है. तो शॉपकीपर को मालूम था दैट इफ़ ही कोटेड सच अ लो प्राइस टू द महाराजा, ही वुड बी पनिश्ड अंडर द रूल्स ऑफ द एमरजेंसी. कि अगर मैंने इतना कम दाम बताया महाराजा को तो मेरे ऊपर तो एमरजेंसी के रूल लगा दिए जाएंगे, मुझे जेल भेज देंगे. तो उसने भी बड़ी रिफाइंड लैंग्वेज में महाराजा के आगे प्रेजेंट किया. ही सेड, योर मैजेस्टी, दिस इज़ एन एग्जाम्पल, दिस इज़ एन एक्सट्रीमली रेयर एग्जाम्पल ऑफ क्राफ्ट्समैनशिप. क्राफ्ट्समैनशिप, कारीगरी का ये अद्भुत नमूना है. अ बारगेन एट 300 रुपीज़, और उसका प्राइस कोट किया 300 रुपीज़. कहाँ 2:1/4 आना और कहाँ 300 रुपीज़. तो महाराजा सेड, वेरी गुड, लेट दिस बी योर ऑफरिंग टू द क्राउन प्रिंस ऑन हिज बर्थडे. तो ये अब तुम्हारी तरफ से क्राउन प्रिंस के लिए उनके बर्थडे पर गिफ्ट है. तो उस बेचारे को तो 2:1/4 आना, 300 रुपीज़ कुछ भी नहीं मिले, बल्कि उसकी तरफ से वो महाराजा ले गए गिफ्ट के रूप में. एंड टुक इट अवे विद हिम. ऑन दैट डे फादर एंड सन प्लेड विद दैट टाइनी लिटिल वुडन टाइगर. महाराजा और उनका बेटा दोनों उस वुडन टाइगर से खेले. इट हैड बीन कार्व्ड बाय एन अनस्किल्ड कारपेंटर. क्राफ्ट्समैनशिप, कारीगरी तो छोड़ो, इसको बनाने वाला एक अनस्किल्ड कारपेंटर था, जो अपनी ज़िंदगी में शायद पहली बार कुछ काम कर रहा होगा लकड़ी पर, अभी सीख रहा था वो. इट्स सरफेस वॉज वेरी रफ़. तो उसका जो सरफेस था वो बहुत रफ़ था, उसमें लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े निकल रहे थे. टाइनी स्लिवर्स ऑफ वुड स्टूड अप लाइक क्विल्स ऑल ओवर इट.
बिल्कुल पतले नुकीले किनारे निकल रहे थे लकड़ी के, विच आर रेफर टू एज स्लिवर। तो वुड में भी होते हैं स्लिवर, एंड दीज आर इजीली ऑब्जर्वेबल इन स्नो आइस ऑल्सो। आइस में, बर्फ़ में भी यही स्लिवर्स होते हैं। बर्फ़ जब टूटती है तो नुकीली हो जाती है। तो वुड के जो वो स्लिवर्स थे वो क्विल्स की तरह उसकी पूरी बॉडी पर थे टाइगर की। एंड वन ऑफ दो स्लिवर पियर्स द महाराजाज राइट हैंड। उन्हीं में से एक स्लिवर ने महाराजा के राइट हैंड को पियर्स कर दिया, उनके हाथ में चला गया अंदर। ही पुल्ड इट आउट विद हिज लेफ्ट हैंड एंड कॉन्टिन्यूड टू प्ले विद द प्रिंस। महाराजा ने उसी समय वो खींचकर बाहर निकाल दिया और खेलने लगे। लेकिन नेक्स्ट डे उनकी तबीयत बिगड़ गई। इन्फेक्शन फ्लेयर्ड अप इन महाराजाज राइट हैंड। उनके राइट हैंड में इन्फेक्शन हो गया और 4 ही दिन में इट डेवलप्ड इनटू अ सपरेटिंग सोर विच स्प्रेड ऑल ओवर द आर्म। वो इतना गहरा घाव बन गया कि हाथ छोड़ो, पूरी उनकी आर्म, पूरे हाथ में ऊपर बाहाँ तक वो घाव फैल गया। 3 फेमस सर्जन्स वर ब्रॉड इन फ्रॉम मद्रास। मद्रास से 3 फेमस सर्जन्स को बुलाया गया ट्रीटमेंट के लिए। आफ्टर होल्डिंग अ कंसल्टेशन दे डिसाइडेड टू ऑपरेट। महाराजा का ऑपरेशन करना ही एकमात्र चारा था, एकमात्र तरीका था उन्हें बचाने का। द ऑपरेशन टुक प्लेस। 3 सर्जन्स हु परफॉर्म्ड इट केम आउट ऑफ द थिएटर एंड अनाउंस्ड। तीनों सर्जन जिन्होंने महाराजा की सर्जरी की, उन्होंने बाहर आके अनाउंस किया द ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल एंड द महाराजा इज़ डेड। ऑपरेशन सक्सेसफुल है, महाराजा डेड है। इन दिस मैनर द 100th टाइगर टुक इट्स फाइनल रिवेंज। और जो महाराजा के जन्म के समय एक प्रेडिक्शन दी थी चीफ एस्ट्रोलॉजर ने, तो उसके अकॉर्डिंग 100th टाइगर ने अपना फाइनल रिवेंज ले लिया था अपॉन द टाइगर किंग। तो 100th टाइगर ने महाराजा को मार दिया। देयर माइट बी सम डाउट इन योर माइंड कि ये 101 टाइगर है, जो वुडन टाइगर है, बट दैट इज़ नॉट ट्रू, क्योंकि जो 100th टाइगर था वो तो महाराजा की बुलेट से मरा ही नहीं था, इट वॉज अलाइव। तो बेसिकली तो उन्होंने 99 टाइगर्स किल किए थे, 100th को वो नहीं मार पाए। तो 100th टाइगर जिससे वो डील कर रहे हैं वो यही वुडन टाइगर था जो उनकी डेथ का कारण बना। तो जो चीफ एस्ट्रोलॉजर की प्रेडिक्शंस हैं दे फाइनली केम टू बी ट्रू, और महाराजा की डेथ का कारण टाइगर ही था, तो इसीलिए उनका नाम टाइगर किंग भी सही है। आई थिंक, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर वेल, and you all are welcome with your queries, with your doubts. Thank you.